Before beginning, may I request all the participants to kindly rise for our national song, Vande Mataram. Please take your seats. Let's invoke the blessings of Goddess Saraswati. I request all the dignitaries on the dais to please come forward for the traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to the Goddess of Knowledge. तुषारहार या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाभरणमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युता शङ्कर प्रभृतिभिः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती
I now invite Professor Shyama Rath, Member Secretary AICT, to deliver the welcome address. Please, ma'am. Honorable Chairman, AICTE, Professor Yogesh Singh Ji, President of AIU, Professor Vinay Pathak Ji, Chairman NETF, Professor Anil Sahasrabudhe Ji, Professor Rajneesh Arora, Chairman NCCIP, Dr. Rajul Asthana, Vice Chairman NCUHV, Shri Ganesh Bagaria Ji, Professor Chamushastri Ji, respected Vice Chancellors, Directors of HEIs, Directors of UHV Nodal Centers and Malviya Mission Teachers Training Centers, UHV volunteers, distinguished guests, and my colleagues in AICTE. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. It is indeed my privilege to welcome you all today to this conclave on a theme which, needless to say, has a universal resonance. My heartfelt gratitude to all of you who have traveled from many parts of our country and made the effort to join us today. Our young today face many challenges on several fronts, and therefore there could not have been a more opportune moment to incorporate this significant topic of universal human values in our curriculum. NEP 2020 has also aptly recognized this need. All of us gathered here today are entrusted with the responsibility of the well-being of the organizations that we work for. We must strive to contribute meaningfully, and the welfare of our community, including our colleagues and our students, should be a priority for us. Maintaining harmony and comradeship is essential. Any discord can only be harmful to society. In this context, I am reminded of a quote by Peter Kropotkin, a Russian historian, philosopher, and scientist. I quote, "Competition is the law of the jungle. Cooperation is the law of civilization." Unquote. Now, what does it convey? That an individual focus could be for something as basic as survival, or even for larger aspirations for the self. However, for a collective good, for society to flourish and to sustain, we need to be together and to create a support system for one another. Therefore, it is our obligation to guide our students about the overall purpose of education, which lies in prosperity, righteousness, and having a holistic view. Incorporating appropriate courses in our curriculum will go a long way in creating a right mindset in our students to face the many challenges that life throws on us with a balanced approach and have a fulfilling life. Over the course of the day, we will have various sessions where there will be deliberations, experiences would be shared on what has been achieved and the possible paths forward. I extend a special appreciation, particularly to the UHV Nodal Centers, for the valuable contributions through curriculum design, faculty preparation, and creating an institutional culture. I also applaud the UHV team for their utmost commitment and dedication.
In our conversations yesterday, I got a flavor of their expanse of work. Today, we will also hear about what AICTE has been doing on this front. Before I end, I would just like to share one thought. As you're all aware, our Honorable Chairman also heads University of Delhi as its Vice Chancellor. There is a quote in his office there which reads, I quote, I shall pass through this world but once. Any good thing that I can do or any kindness that I can show to any human being, let me do it now and not defer it, for I may not pass this way again. Those of us who have worked under Sir's guidance, I am one of those fortunate ones, and have witnessed firsthand his way of functioning, know very well that he truly follows this in letter and in spirit. May we all be guided by such values. All of us gathered here today have the privilege of being empowered. Let us use our empowerment to make the world a better place for our fellow human beings. Thank you, Jai Hind. Thank you very much, ma'am, for your warm and gracious welcome. Dr. Rajneesh Arora ji is chairman of AICT's National Coordination Committee for Induction Program. He played a pioneering role in implementing universal human values at Punjab Technical University by introducing foundation course in more than 300 affiliated colleges and promoting large-scale faculty development programs for effective value-based education. I request sir to please share his views with us. Namaskar. Respected dignitaries on the dais and all the guests in the audience. I've been asked to share my journey of including universal human values in higher education as a proactive step towards holistic value-based education. I think almost all of you have at one place or the other have gone through these all introduction about universal human values course. Rajuji, this is not the. We are all aware of need for human values in society, in our education. Whenever we see any big document, whether it is our own Constitution of India, the very preamble talks about justice, fraternity, equality, liberty. When we see the reports of all the education committees, education commissions, education reports, not even after 1947, but even much before that, start such committees becoming from 1882 till our own national education policy, which was announced in 2020. In all these documents, we very well see the need for value education in our schools, in our colleges. That is the reason in higher education we have
good documents by UGC, Mulya Pravah. We have a document by AICT also, Universal Human Values, not only in our own country, but when UNO talks about sustainable goals, sustainable development goals, SDGs, there also we find they are talking about values. And the latest, we see that Honorable Supreme Court, just on 24th of March, they emphasized urgent need to address students' mental health concerns and mandated a national task force to be formed. So need for value education is now not a debatable point. Everyone knows about it. In our national education policy, the very first page, first para, and first line is that education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Now, these three expectations from education are the very first line of our national education policy document. Now, as educationists, as teachers, vice chancellors, we need to just see what are the meanings of these words in the first line itself. When we say full human potential, that means that every individual level, for every human being, that the full development at the level of consciousness, the feeling of happiness and the feeling of prosperity in the continuity itself, not kabhi khushi kabhi gam nahi. It is the continuous happiness and prosperity is the aspiration for every individual in the society. And at the level of society, when NEP expects that our education should move towards equitable and just society, that means at the level of individual, right understanding, right feeling for every individual, and capability to keep his or her health. That capability should also be there in every individual if we need to have equitable and just society. And there must be capability in every family to have a feeling of prosperity. Every family should be able to earn their own resources for their own requirements. They need to understand about their requirements, their needs, and the ways and means which are eco-friendly, people-friendly means. And at the level of society, it is expected that there must be a feeling of fearlessness, the feeling of trust in the whole society, whether you are in your family or you are outside in the market. And with the nature, there must be a feeling of coexistence to live in mutual fulfillment. So that only leads towards equitable and just society. And the third point, which is expected by national education policy, is that our education should promote national development, the Viksit Bharat, which we talk today. And at the level of nation, when in Bharat we see as a developed nation ourselves, that means we are a nation which has harmony within the nation. And not only we are in harmony within the nation, but we are complementary to other nations to have that harmony within themselves. So that is the concept of developed nation in our own country. So we are to see how to fulfill these three aspirations of national education policy. Here, when we talk in this effort of holistic value-based education, we find that there are three basic components for this. The first one is education on universal human values, which are founded on a holistic and humane world vision and understanding harmony, the harmony which is underlying harmony in the nature itself. So this component is universal human values. And when we see it in our own Indian education knowledge systems, in our own country, in our own tradition, we can reinforce all these issues with so many examples. And we have great people in our society. We have those who have lived on the basis of those values, living in harmony. So these examples can be found in our own society
courses, examples, case studies in our own region, in our own states. And these things can be taught very well in our own national languages in different states. And then accordingly, we can learn about the skills which are there in our own Indian knowledge system. The third component comes learning skills for living with values. First, learning values, then learning skills to live with those values, skills for living in harmony and their practices. Then only when we know about the values, we know about our own systems, then we can learn about the nature friendly skills and the people friendly skills. So these three components can be taught in our universities and our schools. It's more desirable if we do it in our own home language, in our mother tongue. Local languages, regional languages are to be promoted. It's desirable. When I was in Punjab, Vice Chancellor, we translated this book, this textbook in Punjabi itself. The similar efforts are being now done in the different states in the country. Today, this crucial missing link of first step, that talking about and learning about, knowing about those universal human values, it is being fulfilled by AICT's effort for this course, 3-credit course on universal human values. All the details are very well mentioned in Universal Human Values document of AICT. We'll be releasing the 3rd edition of this book today also. The outcome of this effort, the outcome which is expected from holistic values for holistic value-based education, these are common graduate attributes. The first one is a holistic vision of life, understanding the broader purpose and goals of human life, social responsibility, acting in ways that benefit society, environmental responsibility, engaging in work that respects and protects nature, ethical human conduct, making moral and ethical decisions, health and hygiene awareness, maintaining well-being and cleanliness, respect for excellence and gratitude, recognizing the value of merit and have a feeling of gratitude. Now, these 6 attributes are common for all graduates, whether they are from technical education or commerce or legal or medical or agriculture. This is to be understood by all the head of the institutions like us, that we have to orient our curriculum towards this direction where all these common graduate attributes are taken care by. Now, this whole effort is in continuation with our own tradition. All great people in the world, they have tried to realize the truth and then to live by it through love and compassion. इसको अपने यहाँ पर सत्य कहा, to understand this harmony and to understand human role in harmony, to live with human values, जिसको अपने यहाँ पर धर्म कहा गया, and to live in harmony, और उस धर्म के आधार के ऊपर जीना, जो करुणा और न्याय के आधार के ऊपर जीना. For all such great people, we have a deep feeling of gratitude. The universal human values effort is in a continuation of that tradition. India has made efforts to live by these universal human values for thousands of years. Therefore, the Indian knowledge system and traditions are a rich repository of all these efforts. When we talk to the students in this course, we talk to it's a systematic study of harmony from individual to family to society and nature and existence. The questions which students discuss with their teachers: who am I? What is my purpose? What is my role? What is my value with myself? What is my role or what is my value with my body? What is my role? What is my value in family? What is my role in the society? What is my role or value in nature and existence? And the answer is not dictated by the teacher. Answer is not preached by the teacher, but the student is encouraged to explore it within themselves.
The process is self-exploration. The reference point is natural acceptance by the student himself or herself. Human values means what is worth doing for a human being. And then having the capability and the commitment to live by those values, leading to fulfillment, and that is the well-being of all. That is the Sarve Bhavantu Sukhina. In Punjab, we say Sarbat da Bhala. So that is the way forward towards the purpose of the society, towards the equitable and just society. The basic guidelines for this course are that all the issues which are discussed in the classroom by the teacher with the student, these are universal. The whole content is universal. It is applicable to all human beings and at all times, at all places, whether it is being taught in Asia or Australia, Africa or America or Europe. It has no limitation to any sect, creed, nationality, race, or gender. These issues are rational issues. These can be discussed with our students in the classroom, and they are amenable to logical reasoning, not based on do's and don'ts or blind beliefs. These are verifiable. The student is able to verify the values on his or her own right, not to be believed just because it is being stated by the teacher in the course, in the classroom. And all these issues are holistic. They are all encompassing, जिसको सर्वांगीण कहा जा सकता है, covering all aspects of life, not limited to just their career or not limited to just for the jobs themselves. And the final is, the whole content is humane, leading to harmony, values that enable us to live in peace and harmony within our own self, जिसको व्यष्टि कहा जाएगा व्यक्ति के नाते से, as well as with others, as well as with all others, samashti, human being and rest of nature. Not only human beings, but the whole nature, whether it is plant kingdom or human kingdom or materials. Today, this whole nationwide implementation of this value education through universal human values, I'm happy to share with you this whole content and process. This team has developed 16 books on it. There is one textbook you all have seen and the teacher manual also. Then 12 different types of FDPs. They include the one-day leader development program for vice chancellors and management development program for managers and principals. That is a 3-day program. Then most of them are 8-day. And then higher level FDPs are also there. 8 different courses are there in the model curriculum of AICT, which are used by students and institutions for minor degree in universal human values. And UHV cells and nodal centers have been established in different universities and colleges. So it's a well-knit nationwide network of more than 500 faculty volunteers working pro bono. No volunteer is charging any honorarium from any institution to being a resource person for these courses. Detailed implementation program, as we now have about 1 lakh faculty members, those who have been developed through 900 FDPs, which have been organized through AICT efforts, 4,000 institutions in 39 states. And I am happy that we have participants from Tamil Nadu, Bengal, Gujarat, Punjab, all parts of the country, from all states also. And we are touching 7 to 9 lakh students per year because these courses are being implemented in these 4,000 institutions. Extension efforts include UHV workshops in jails of 5 states. Now in Punjab also, in some of the jails, these workshops are being conducted. And these are being conducted in villages in 2 states, Rajasthan and Madhya Pradesh. Madhya Pradesh started earlier through Sansthan and School Education Department. And now Rajasthan School Education Department is also using this vision and material of AICT. UHV Anand Sabha in 2000
government schools in Madhya Pradesh, initiated in model schools in Rajasthan also. We have participants from Rajasthan and Madhya Pradesh also. Now, as a last point, your commitment is really appreciable. You have spared your valuable time for this purpose. This vision document shared with you has detailed implementation steps for taking it forward to in your institutions. Our regional teams have identified volunteers to assist you in your effort. At whatever level you need a support from AICT UHV team, whether it is to discuss the agenda in board of studies or to take it forward to academic councils and then to have teachers training, that all support for implementation is provided by UHV team. And encouraging impact of this whole effort, I have a quote from Professor Dr. K.V. Leela, Associate Dean, SRM University, Chennai. He said that I used to see students visibly stressed during exams. Some would even go absent. But even the last 2 years, past 2 years, I quietly noticed something different. Students were calmer and absenteeism has dropped. When I asked, I kept hearing the same answer: UHV, universal human values. Similar thing are the key findings of IRMA impact study, which was conducted from AICT. AICT deputed IRMA Gujarat to have the impact study for universal human values. In 2022, they conducted this study. It is a quantitative study and a longitudinal study covering a sample of 27,000 faculty, 11,000 students, more than 5,000 institutions from 34 states and union territories of the country. Number one key finding was enhanced academic performance. Number two, improved mental health and well-being. Number three, improvement in physical health of the students. Fourth is better collaboration and teamwork. And fifth is heightened environmental awareness. So these are the issues which are very much visible when we find the students undergoing in 2 years or 3 years of this course, and then the follow-up activities of weekly meetings, etc. Our regional teams have identified volunteers to assist you in your effort based on your commitment, readiness, and preparation. They will accordingly help you to work out the detailed stepwise program. But the key success factor I'm sharing with you, that it starts providing results when head of the institution attends the full UHV program at least once. I can share with you in 2010, I went when I was Vice Chancellor in Punjab Technical University. I went with 24 team members from my university, deans and senior teachers of the university, to IIT Kanpur to have a 8-day universal human values workshop. And there I could see not only the content part of it, but the pedagogy of this whole program, because it is not based on any instructional material, no do's and don'ts, na adesh se, na upadesh se, no punishment, no reward. It is only the self motivation, जिसको स्व प्रेरणा कहते हैं, उसको जगाने की कोशिश होती है. तो इतनी बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, और आप सबसे निवेदन है कि एक बार आप इस वर्कशॉप में जरूर पूरा दिन पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत आनंद आएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, sir, for your valuable insights. I would now like to invite Shri Rajul Asthana ji, Vice Chairman, NCCIP AICT, whose dedication and commitment have been instrumental in advancing value-based education to where it stands today. Please, sir.
friends on the dais and friends of the dais, warm welcome to this VC conclave. It's a delight to be here. I'm going to share briefly the efforts so far and the impact and future possibilities. The effort basically is for establishing universal human values as a starting point for holistic and value-based education in the mainstream education system. So we start with value education, then value education basically means that we add a new subject, this value education subject. Then value-based education, that every subject is based on human values. That is, it is based on ensuring harmony at the level that it is working on. And then that naturally leads to living in harmony, value-based living. And the guidelines Rajneesh has covered, process also he has covered. So I'll skip that. It has been rigorously experimented in mainstream education since the 80s, starting with a science and humanism course at IIT Delhi. Then with that, MHRD established national resource centers in IIT Delhi and two other places, NCRT and IIM Lucknow. The IIT Delhi Resource Center is still operational. 2005, IIIT Hyderabad experimented with a mandatory 2-semester course. Professor Shatrunjay Rawat is here, so I would encourage you to speak to him about this course. In 2009, UPTU, which is now called AKTU, picked the course up and it was placed in these 550 colleges. I'm delighted to have Professor Vinay Pathak over here, who is going to share a little bit of detail on that. During his time, this course took, from one step to another step. Punjab Technical University was next. Rajneesh ji shared about that. He was the Vice Chancellor over there. Then in 2012, we started international conferences. And the first conference, we had Professor Pema Thinley, Dasho Pema Thinley, who was then the Vice Chancellor of Royal University of Bhutan. So from this conference, it went to Bhutan, and it is, they found that it is very well connected with their concept of gross national happiness. So, and then in 2012, the Himachal Pradesh Technical University and Bikaner Technical University. We are fortunate to have Professor H.D. Charan, who was then the Vice Chancellor of Bikaner Technical University, and he will share in the afternoon session. By 2017, more than 40 universities in 10 states of India had this foundation course, and they were finding it, the outcomes very encouraging. One thing I want to reinforce is that this initiative succeeded and sustained in institutions where the head of the institution attended the program. At that time, Professor Sahasrabudhe, who was the then chairman of AICTE, brought it to AICTE. And we have Professor Sahasrabudhe here as the pioneer of that. So what we could figure out was these 4 things, that in 2017, AICTE could acutely sense the need for human values. They could recognize that human values content and process is universal and it is effective. It was assured by the scale of previous implementations. And it was able to appreciate its visible and considerable impact and effectiveness. Although it is taught, there is a sort of feeling that values cannot be taught, but values can be taught in the classroom. They can be practiced. And there are hundreds and thousands of good examples that have now been, we can see them. AICTE from 2017 has made tremendous effort in taking this to the whole nation. Every subsequent
chairman, vice chairman, member secretary. They have, and we are delighted to have Professor Yogesh ji over here, who is now taking it to such a national level, I would say international level. Thank you so much. So there are some details over here. I think I'll skip those details. But very briefly on the model is in detail. If I see for step one, the value education part, there are three possibilities. We do things proactively, we do things post-actively when things become worse, or we do things almost like after that when things become critical. Today we are doing counseling and things like that when things have become quite critical. So if we place this in the initial stage of the student's life, in school and in college, it will make a huge difference. So for higher education, students, if they go through the student induction program, a reasonably sized 3-week induction program, which includes UHV 1, this Universal Human Values 1, and holistic health, and follow it up with faculty mentors, follow it up with student buddies, it will make a tremendous amount of difference. And that results Rajniji had briefly shared. Then follow it up with a mandatory UHV 2 course and an optional minor degree in UHV. So this can be done proactively. And of course, for this, faculty has to be well prepared. The minor degree has these courses, UHV 3 to UHV 8 and Holistic Health 2. And the minor degree in UHV is intended to develop teachers, parents, and policymakers of tomorrow who will have a humane world vision. They will be focused on well-being of all, along with the technical skills, who strive to ensure value-based living for themselves. They are in peace within and are committed to contributing, developing a humane society. So this model curriculum that AICTE started has been augmented with this minor degree, and several universities today are, opting for this minor degree for their students. And while they are preparing their teachers to be able to deliver the minor degree courses, we are putting it on SWAYAM so that it can be reached. So these are the details that we are doing. Once the problems become more active, at that time we do have anti-ragging cells, helplines, grievance systems. But unless we do the proactive step, this next step is not good. It is going to have a huge volume, and counseling in this. And if we don't address it over there also, we have things like suicide. So we need to look at things very actively. Step 2, as I said before, is aligning all the subjects to human values. And this model that we talked about, Rajneesh has already talked about. And the value-based living, that institutions become living models of the kind of society that we aspire for, that we want to leave for our children. So, of course, a lot of effort will be required over there. These details I'm not covering, but showing over here, because these are covered in the basic 5 to 8 day programs that we have on universal human values. The implementation, the team of faculty volunteers who are more than 500 in number, and they are across the nation, are organized in a very well-knit network. We have, for every region, like you had the registration desks for, you had 4 registration desks, but for all the 8 regions, there are regional coordinators, and they meet every week. They have lots of meetings, and the meetings are basically for developing themselves, number one, developing a feeling of team, feeling of relationship in the team. And the third one is, with that feeling of relationship, they can contribute to the
programs, the projects, the activities, which will help to develop that human society that we are looking for. And these numbers have been covered. You can see in the map, that every state of India, 39, I mean, there are, I think, some things are left, but mostly we have covered almost 99.9%. So today, if we see this implementation has not only reached higher education, but from there, the model has been taken by school education. We are developing a counseling model which is based on universal human values so that we address the root cause. We don't address the symptom alone, we address the root cause. And then the model for the extension work in villages, rehabilitation programs, and jails. So these are some numbers which Rajnishi has already covered. Yeah. Yeah, one thing I would certainly mention here is that the rehabilitation effort that Bhutan Institute of Wellbeing has taken up about 7 or 8 years back, their success rate, their sober rate after 1 year, 2 years, 3 years of addiction, their sober rate went up from 40% to 62%. So this kind of change happened because they are addressing to the root cause. And the root cause is a person is unhappy, they're trying to escape from that unhappiness, and they're taking on to drugs and alcohol and things like that. So if they are able to see what is happiness, if they are able to directly observe and directly see, be aware, they can get out of this problem. So very large percentage of success rate we can see in this Bhutan Institute of Wellbeing. This has already been covered, very effective. This has also been covered. So thank you very much and best wishes to you. Thank you very much, sir, for this informative address. The present status of universal human values in technical education is a reflection of his visionary initiative taken 8 years back. May I now invite Professor Anil D. Sahasbuddhe, Chairman NETF, NAC and NPA, to share his insights with us. सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर योगेश सिंह जो एआईसीटी के आज अध्यक्ष भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी है, प्रोफेसर विनय पाठक प्रेसिडेंट ऑफ एआईयू और पहले यूपीटीयू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं जब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था, प्रोफेसर रजनीश अरोरा जी जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया हुआ था और आज एनसीसीआईपी के अध्यक्ष भी है, राजुल अस्थाना जी जो आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट है और पूरी जिंदगी इसके लिए अपनी झोंक दी गई है, जो इस काम में लगे हुए हैं और उनके साथ करीब 100 वॉलंटियर्स है। मेरे सामने गणेश बागड़िया जी बैठे हुए हैं, चारण जी है, जम्मू कृष्ण शास्त्री जी है, श्यामा रथ है, ये सभी लोगों को तथा यहाँ पधारे हुए सारे वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, डीन्स, इन सब लोगों को प्रणाम करते हुए मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, क्यों करना पड़ा, ये थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आते हैं तो नॉर्मली एक 1 डे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था और उसमें एक दिन में ऐसे डायस में बैठे हुए डीन, वाइस चांसलर, एचओडीज नॉन स्टॉप हर आदमी आधा घंटे का एक टॉक देते थे और इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या फैसिलिटीज है और कल से क्लासेस शुरू होंगे, हमारे यहाँ सीजीपीए सिस्टम है, सीजीपीए का कैलकुलेशन कैसा होता है, ये सब बता देते थे। और एक छात्र 10वीं 12वीं करके जो पहली बार यूनिवर्सिटी में आता था या कॉलेज में आता था, उसको ये सब सिर के ऊपर जाता था और कुछ समझ में नहीं आता, दूसरे दिन से क्लास शुरू होते थे। और हमारे देश में
जितनी डाइवर्सिटी है इतनी डाइवर्सिटी किसी देश में नहीं है। इसलिए हर कॉलेज में आने वाले छात्र जो है, कोई बहुत ही छोटे गांव से आते थे तो कोई शहरों से आते थे, कोई गरीब परिवार से आते थे तो कोई रईस परिवार से आते थे, कोई अंग्रेजी मीडियम एजुकेशन लेकर आते थे, कोई मातृभाषा में शिक्षा लेके आते थे। और दूसरे दिन में जब क्लास शुरू होता था तो उनको अचानक बहुत कठिनाइयां फेस करनी पड़ती थी। And that was the spirit which we understood that the students who come to the colleges and university face. How do we address this? And that is how, based on the wisdom that we have seen from 1980s, ऐसा नहीं है कि बहुत नया प्रयोग था। 1980 के दशक में ही IIT दिल्ली में इसका एक प्रयोग किया गया था। उसके बाद जैसे डॉक्टर आस्थाना ने दिखाया कि हिस्टोरिकली फिर IIT हैदराबाद हो, उसके बाद UPTU हो, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, फिर IIT BHU में हो, और ऐसे अनेक यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके के जो प्रयोग हुए थे वो सब खेज हुए थे। तो AICTE ने ऐसा डिसाइड किया कि एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के लिए एक कमेटी बनाई जाए और हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इसको कैसे लागू किया जाए उसके बारे में सोच शुरू की। और मुझे इसलिए डॉक्टर अरोरा जी को, तथा यहाँ नहीं है लेकिन प्रोफेसर सांगल जी को तथा गणेश जी को धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा कि इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, they have evolved a system where not on the basis of forcing something on anyone, but making students to realize, that means on the basis of reflection and introspection, each one of the persons in the education sector must get committed to the human values. और हमारे देश में हम इसको धर्म कहते हैं। हर शिक्षक का एक धर्म होता है, हर छात्र का एक धर्म होता है सीखने का। वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इज नथिंग बट the dharmic principle that we have enunciated in a different manner, so that universally all across the globe people can understand, connect with this, because this is indeed universal. You go and ask anyone, do you feel that you should be given respect? Everyone says, yes, I want respect. But do you also give respect to others? Then sometimes a question mark arises. And therefore, this is mutual. If I want respect, I should respect the other human dignity, human person, and that's how the universality of human values exists. We also talk about various other values. We all say truthfulness, honesty, integrity. ये सब चीजें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अपने जीवन में आप इसको पालन करते हो क्या पूछने से कुछ लोग झूठा भी बोल सकते हैं कि मैं फॉलो करता हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हम नहीं करते हैं, लेकिन हम जानते ये सही है। जब सही है ये आपको पता है तो उसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? तो अनेक लोग अनेक अनेक कठिनाइयां बताते हैं कि रूल्स ऐसे है, रेगुलेशंस ऐसे है, लेकिन हर आदमी को अपने आप अंतर झांक कर देखना चाहिए। वी हैव टू इंटरनलाइज, सी इनसाइड, व्हाट एम आई डूइंग द राइट थिंग? And if we are able to do that self-introspection, I'm sure the whole world will become very peaceful, happy, joyous, and the world will be a better place to live in. In the national education policy, few things are mentioned. One of them is about how we have to provide holistic education. National education policy में जो बताया गया वो सब चीजें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। हमको हमारे साथ सारे लोगों को जोड़ना है, राष्ट्र को निर्माण करना है और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को मेंटेन करना है। उसी के साथ साथ पर्यावरण की संरक्षण भी करना चाहिए। और ये सारी चीजें इस 3 हफ्ते के यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का पहला कोर्स जो स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हम देखते हैं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बहुत लोगों ने सूर्योदय ही देखा नहीं, क्योंकि वो रात में 1-2 बजे तक पढ़ाई करते हैं और सोते हैं तो उठते 9-10 बजे। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो सारे छात्रों को जब कॉलेज में आएंगे तो सुबह जल्दी 5:30 बजे, 6 बजे उठाकर प्लेग्राउंड में ले जाना है। कंप्यूटर गेम्स के बदले में
ट्रू रियल गेम्स को खेलना है, अपना एक्सरसाइज करना है, योग मेडिटेशन करना है। ये सब सारे चीज़ों के साथ साथ अलग अलग लोगों का लेक्चर्स या आसपास के हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट प्लेसेस को करना, आयुर्वेद और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में समझना, जो रूटेड इन इंडियन वैल्यूज हम बार बार कहते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, उसका एक सुखद अनुभव 3 हफ्ते में जब छात्रों को मिलता है तो बाकी उनके 4 साल में वो अपने आप बहुत सारी चीजें सीखना शुरू करते हैं। दे विल बिकम sort of they belong to that institute. That belongingness was missing earlier, whether it is by faculty or students. And therefore, whether it is 3-day program, 1 week program, 8 days program, जो हम faculty के लिए faculty development program बनाए हैं, उसमें जब छात्रों को हम कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउ आर वी टू रिलेट विद देम, हाउ आर वी टू डेवलप रिलेशनशिप, ये जब पता चलता है तो बहुत सारे टीचर्स उनके आखिरी दिन जब उनका अनुभव कहने के लिए कहते हैं तो आंखों में आंसू लगकर कहते थे कि हमको हमारा टीचर का धर्म पता नहीं था, इस प्रोग्राम के जरिए हमको हमारा धर्म पता चला। तो इसके बाद में हम अगले 10, 15, 20 साल ऐसे अच्छी तरीके से हम छात्रों के साथ व्यवहार करेंगे, उनमें डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। और नेचुरली हर व्यक्ति यदि अच्छा नागरिक बन के बाहर जाता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तो राष्ट्र निर्माण अपने आप होता है, जहां भी जाएंगे वो अच्छा काम ही करेंगे। तो इसलिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो हमारे बंधुओं ने डेवलप किया है। इसमें करीब करीब 100 वॉलंटियर्स बिना ऑनरेरियम लेकर, नॉर्मली कोई भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है तो ऑनरेरियम दिया जाता है, तो इन्होंने मना किया। ये हमारा कमिटमेंट है और कमिटमेंट के साथ जो काम करते हैं तो नेचुरली दे विल बिकम रोल मॉडल्स। एंड जब रोल मॉडल्स को हम देखते हैं तो हमारे प्रिंसिपल्स टीचर्स भी रोल मॉडल हो जाते हैं, तो वो रोल मॉडल होते हैं तो स्टूडेंट भी रोल मॉडल हो जाते हैं और ये एक चेन रिएक्शन बनता है। और मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया गत 8 साल में शुरू हो गई है, अब वो स्कूलों में जानी चाहिए, बाकी कॉलेजों में, सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन नहीं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सारे कॉलेजेस में होनी चाहिए। और यहाँ जब वाइस चांसलर्स बैठे हुए, मेरा एक ही उनको अनुमोदन है, रिक्वेस्ट है, मेरी इच्छा है कि आप सब लोग भी एक बार कम से कम ऑनलाइन 5-डे प्रोग्राम में अपना समय इसमें दे दीजिए। आपके बहुत सारे काम होते हैं, मैं जानता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उस कार्यक्रम के लंच ब्रेक में कीजिए और पूरा का पूरा दिन सुबह से शाम तक बैठ के आप यदि इसको फॉलो करेंगे, इसको ट्रू अंडरस्टैंडिंग के साथ देखेंगे, तो मेरे ख्याल से अपने अपने यूनिवर्सिटी में अपने प्राध्यापकों को बताने के लिए आप काबिलियत पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हम थ्योरेटिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकल जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दिस इज ए ट्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसके साथ हम सब जुड़े, देश को आगे बढ़ाएं। और हमेशा हम बोलते हैं कि हमारे देश को विश्व गुरु बनना चाहिए, तो विश्व गुरु बनने का रास्ता जो है इसी माध्यम से जाता है। आप सब लोग इसमें यदि सहभागी हो जाएंगे तो दिन दूर नहीं है जब हम विकसित भारत भी होंगे और दुनिया को, जो हम बार बार वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, वर्ल्ड हैप्पीनेस, क्योंकि हम देख रहे वहाँ यूक्रेन रशिया में वार हो रहा है, यूएस इसराइल एंड ईरान वार हो रहा है, ऐसे समय में यदि कोई सही रास्ता दिखा सकता है वो सिर्फ भारत ही दिखा सकता है। इसके हमको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उस दिशा में हमको कार्य भी करना चाहिए। इतना मैं कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। Thank you for your enlightening and motivating address, sir. We now invite Professor Vinay Pathak, President, Association of Indian Universities, to share his experiences on implementing UHV at large scale during his tenure as Vice Chancellor of one of the biggest university of the country, AKTU, Uttar Pradesh. Thank you, sir. Presentation. कौन सा? ये है तो presentation। अभी देखिए दूसरा
पहला पेज ऐसा है। एक पेज चेक से आगे बढ़ रहा है। से मंच पे आसीन हम लोगों के अग्रज और बड़े भाई की तरह और एआईसीटी के चेयरमैन जो जीवन मूल्यों को जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसकी पालना भी करते हैं, ऐसे प्रोफेसर योगेश सिंह जी, हम लोग के वन ऑफ द मेंटर्स जिन्होंने ये कोर्स में बहुत इंडिया के ऊपर काफी किया है, ऐसे प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी, राजुल अस्थाना जी, मंच के सामने बैठे हुए मेरे अपने टीचर जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, गणेश बागड़िया जी, प्रोफेसर चामुकेश शास्त्री जी, श्यामा रथ मैम और मेरे अपने सभी कलीग्स और वाइस चांसलर्स। आज जब मानवीय मूल्यों के ऊपर मुझे ये एकेटीयू के प्रेजेंटेशन के बारे में बोलने के लिए वक्त मिला है, तो उस समय मेरे स्मृति पटल पर अचानक याद आई कि मध्यस्थ दर्शन की जो पहली वर्कशॉप्स है जो वागड़िया जी के घर में होती थी, उसमें उस समय जो संत भी थे और उन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड भी किया जिसपे ह्यूमन वैल्यूज की है, तो मैं भी उनमें से कुछ कम लोगों में हूँ जो मैंने उनकी भी, नागराज जी की भी वर्कशॉप्स अटेंड करी। और उस समय हम लोग इसमें बहुत सारी डिबेट्स करते थे क्योंकि ऐसा समय था 90 और 99 का, मुझे उस समय मौका मिला था, हम लोग ने वैदिक गणित भी लिखी थी और उस समय ये दर्शन पे भी चर्चा होती थी। एचपीटीआई में सर प्रोफेसर थे तो हम लोग काफी मूल्यों पर चर्चा करते थे। धीमे धीमे मैं वाइस चांसलर बना और जब मैं एकेटीयू का वाइस चांसलर बना तो एक बात जो मेरा मन में हमेशा रहती है और इस पूरी कॉन्फ्रेंस में भी इम्पोर्टेंट है कि सर भी कहते थे और हम लोगों को भी आज भी लगता है कि अगर आज कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे समय में तो वो है मानव का मानव से व्यवहार प्रिडिक्ट करना। पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट भी लगती थी लेकिन आज उसका महत्व और बढ़ गया है। और अगर हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो दो चीजें हमें दिखती है कि आज ये जो पीढ़ी हमारे सामने बैठी है उनमें से अधिकतर लोग इस पीढ़ी में जो अभी फादर हैं या अभी ग्रैंडफादर बने हैं या फादर बनने वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने पापा मम्मी से भी डरते थे और अपने बच्चों से भी डरते हैं, दोनों से डर रहे हैं। उन्हें पापा मम्मी से तो डर के सब बात मानते ही थे लेकिन बच्चों से भी डरते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, एक ही बच्चा है, क्या है क्या है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि आज पूरे समय में जब भी हम लोग सुबह व्हाट्सएप खोलते हैं तो पहले तो वो हम लोग कहते थे ना कर मध्य और भाई ऐसे हाथ करो, लेकिन अब हम सोचते हैं कि भाई ट्रम्प ने क्या किया जरा ये देख लो सबसे पहले क्या हो गया है। तो हम सचमुच मानव के व्यवहार से बहुत ज्यादा, जिसकी हम लोग ह्यूमन वैल्यूज में बहुत चर्चा करते थे कि भाई मानव का व्यवहार प्रिडिक्टेबल है कि नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है, उसकी पूरी चीजें हम देख रहे हैं। आज कैंपस, सर भी डीयू का कैंपस संभाल रहा है, मैं भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी का स्टेट कैंपस संभाल रहा हूँ, आप सब संभाल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है या जो हम सबसे कम समझ रहे हैं, मैं आईआईटी कानपुर के बगल में करता हूँ, कानपुर यूनिवर्सिटी में सुबह पेपर निकलता है, वहाँ के भी डायरेक्टर परेशान रहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई व्हाट्सएप पे जैसे पहले कोरोना की डेथ्स आती थी, ऐसा ना हो कि कोई सुबह सुसाइड आ जाए। सबसे बड़ी कैंपस में सब है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, 10,000 करोड़ है, लेकिन सबसे बड़ी कैंपस की प्रॉब्लम है कि सुसाइड ना हो। अभी क्या कर सकते हैं, हम सबके पास कोई सोल्यूशन नहीं, हमने अपने सारा काम साइकोलॉजिकल काउंसलर्स को आउटसोर्स कर दिया। हमने सोचा शायद वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल काउंसलर्स की क्या हालत है वो हम सब लोग जानते हैं। हो सकता है वो लोग और साइकोलॉजी से परेशान हो, ऐसा इंपॉर्टेंट मुझे
अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स में कोई रेजिलेंस नहीं है। जरा सी कोई बात हुई, इतने वीडियोस आ गए, इतने मीडिया ट्रायल्स आ गए, इतनी मीडिया आ गई, बिना कुछ सोचे ही कैंपेन हो रहा है। और वाइस चांसलर को मतलब इतना डर रहता है, जितना नई बहू को भी डर नहीं लगता होगा सास के घर में। बहुत डर में रहते हैं, ये पता नहीं क्या हुआ, किसको टैग कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को कर दिया, ट्रंप को कर दिया, किसको कर दिया, और कहां से कौन सी चिट्ठी आ रही है, गवर्नर हाउस से एक्सप्लेनेशन कॉल आ रही, वहां से आ रही, वहां से आ रही। दिन भर वीसी डरा रहता है और सोशल मीडिया देखते रहता है कि ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा टैग हो गया है, कुछ हो गया। तो सचमुच ये कैंपस की जो वल्नरेबिलिटी है, उसके सॉल्यूशंस में हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो कोर्स है, ये कुछ हद तक, क्योंकि इसके लिए वैसे फैसिलिटेटर्स चाहिए, लोग चाहिए, समझदारी, ना समझदारी करने में तो 1 मिनट लगता है, पर समझदारी से व्यवहार करने में बहुत समय लगता है। तो उसको करने में हम लोगों को वक्त करना चाहिए। और जब मैं AKTU में VC बना, और मुझे इस बात का बहुत गर्व भी है, और मेरे को बहुत ऐसा सानिध्य भी मिला गणेश सर का, क्योंकि वो मेरे HBTI में भी प्रोफेसर थे, और हम लोगों ने उनके साथ पीपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी बहुत काम किया। हम उनके साथ गांव में भी बहुत गए, हमने उनके साथ वैदिक गणित पे भी बहुत सारा काम किया। और ऐसे बहुत सारी पद्धतियों में हमने सचमुच, उनका जीवन एक सन्यासी का भी है, और वो कभी किसी चीज को चाहते नहीं है। हम लोग तो उनसे कहते हैं, पर वो कभी भी आगे नहीं आते हैं, आज भी मंच पे नहीं बैठे वो। तो ऐसे ही हैं, तो उनका ऐसा सानिध्य मिला, तो सर आए, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक ऑडिट कोर्स के रूप में ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स शुरू किया। 2015 में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग इसको एक क्रेडिट कोर्स में कन्वर्ट करेंगे। 2017 में हमने इलेक्टिव कोर्स के ह्यूमन वैल्यूज के रूप में इसको 6th, 7th और 8th सेमेस्टर में किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने 40 नोडल इंस्टीट्यूशंस को रीजनल सेंटर में डेवलप किया, और फिर हमने माइनर डिग्रीज इन ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन द प्रोग्राम। ये बात देश में सही है कि अगर हम लोग किसी एक IIT में कोर्स चलाते हैं, जैसे सहस्रबुद्धे सर ने कहा, या IIIT हैदराबाद में चलाते हैं, वहां भी गया मैं, वो बहुत आसान होता है, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होता है। लेकिन आपको पता होगा कि 5 IIT से 10 IIT करने में कितना समय लगा, 10 IIT से 20 IIT करने में कितना समय लगा, और 20 से 30 में। और अभी भी लोग बोलते हैं ये जनरेशन फर्स्ट IIT है, ये जनरेशन 2 है, ये लास्ट प्रायोरिटी का IIT है, और ऐसे विचार होते हैं। तो सचमुच किसी विश्वविद्यालय में लाखों लोगों को एक कोर्स में ट्रेन करना और उसको रेप्लिकेट करना एक इंपॉर्टेंट पैराडाइम है, और वो हम लोगों ने किया। 6000 फैकल्टी मेंबर्स को हम लोगों ने ऑनलाइन और फेस टू फेस मोड में ट्रेन किया, और रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने किया। AKTU पहली विश्वविद्यालय थी, और सहस्रबुद्धे सर ने भी हम लोग को बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। और मैं तो आपको बताता हूँ कि आज भी हमारे वाइस चांसलर के ग्रुप में जब भी कोई ऐसी ह्यूमन वैल्यूज की बात आती है, तो सहस्रबुद्धे सर ही ब्रांड एम्बेसडर है। वो सबसे पहले लिखते हैं, ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, और लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई ये कोर्स हो रहा है। तो वो भी वन ऑफ द ट्रू, क्योंकि उनकी अपनी एक एक्सेप्टेबिलिटी है इंडियन सोसाइटी में, इंडियन टेक्निकल एजुकेशन में। फिर हम लोगों ने जितने भी मैक्सिमम रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो लगभग AKTU के उस समय के हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम शुरू किए ह्यूमन वैल्यूज के। हम लोगों ने UHB सेकेंड ये कोर्स हमने डिजाइन किया सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और हम लोगों ने और भी कोर्सेज, बहुत सारे लोगों के मन में था, तो हम लोगों ने और बहुत सारे कोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग, नेचर एंड एग्जिस्टेंस, विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन वैल्यूज इन सांख्य, योग एंड वेदांता दर्शन। इस सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज इन बौद्ध एंड जैन दर्शन, ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन, माइनर डिग्री प्रोग्राम्स। और हम लोगों ने नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और ह्यूमन वैल्यूज के कोर्सेज। ये कुछ हमारे ग्लिम्सेस हैं जो आप देख सकते हैं। देयर आर इश्यूज, देयर आर प्रॉब्लम्स, और किसी भी चीज को रेप्लिकेट करने के लिए इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत सारा पैसा होता है, टेक्नोलॉजी को जानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। पर ऐसे कोर्सेज में एक महत्वपूर्ण चैलेंज होता है कि फैकल्टी कैसी हो, और फैकल्टी पे बहुत सारा, क्योंकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी को जीवन की ट्रेनिंग देते हैं, तो वो हम मूक से नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट
वहां पे व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति बोल रहा है, कौन से व्यक्ति का क्या आचरण है, वो इम्पोर्टेंट है। और इस पर हम लोग की बहुत चर्चा होती थी कि बागड़िया सर से हम लोग हमेशा पूछते थे या रजनीश जी से कि आप जैसे टीचर्स रेप्लिकेट कैसे होंगे, क्योंकि जब व्यक्ति आचरण सीखता है तो आचरण वो बहुत उपदेश से नहीं सीख पाता है, और उसे लगता है कि जो उसका गुरु है उसका लेवल अलग होना चाहिए, उसमें वो सब नहीं होना चाहिए जो एक साधारण व्यक्ति में है। तो इसलिए जब ह्यूमन वैल्यूज के कोर्स रेप्लिकेट करने का मामला आया तो सर ने भी पहले बहुत समय में अच्छे रिसोर्स पर्संस को ढूंढ के और तैयार करने में और उनसे बहुत सारा डिस्कशंस किया, क्योंकि सबसे कठिन काम यही है कि हाउ टू रेप्लिकेट दैट फैकल्टी। Need for resource persons, need for resource centers, increasing the interest of student, sincere delivery of courses, scope for further study for interested student, monitoring of teacher quality। और मुझे एक बात कहने में इम्पोर्टेंट है कि ये बात पूरे ह्यूमन वैल्यूज के ग्रुप ने पहली समय से स्टैंड ली कि हम में से जो भी कोई पढ़ाएगा उसका ऑनरेरियम नहीं लेगा। ले सकते हैं लोग ऑनरेरियम, और एआईसीटी भी देने को तैयार है और सभी लोग देने को तैयार रहते हैं, एकेटीयू भी देने को तैयार था, पर ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया गया कि जो लोग भी इससे जुड़ेंगे, जो लोग भी करेंगे, तो वो कम से कम जो यूनिवर्स के लॉज हैं कि उसमें मैक्सिमम चीजें फ्री हैं, है ना, सूर्य की किरणें और पेड़ की हवाएं और सब कुछ, तो उसको इसी तरीके से इसको शुरुआत की जाएगी। और बहुत कम उसमें सभी लोगों ने और ये शो करा कि भाई नहीं है, और हर व्यक्ति ऐसा रोल मॉडल बने, ऐसा प्रयास इस ह्यूमन वैल्यूज के ग्रुप में किया गया। अभी स्टूडेंट्स का जो मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने धीमे धीमे ये एहसास किया हर लैब में जाके। और हालांकि जो लोग बहुत सारा फ्री में काम करते हैं उनकी थोड़ी मार्केटिंग कमजोर होती है, वो फेसबुक ट्विटर पे भी कम आ पाते हैं, तो हम लोगों का हमेशा ह्यूमन वैल्यूज के ग्रुप में सर से ये रिक्वेस्ट करना रहता था कि आप थोड़ी इसकी अच्छी जो हमारी सक्सेस स्टोरीज है वो धीमे धीमे और लोगों को बताएं। जितनी सक्सेस स्टोरीज आपको दिख रही हैं, मैं आपको इस बात से कह सकता हूं इस मंच से कि उससे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज, उससे बहुत महत्वपूर्ण सक्सेस स्टोरीज और भी हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, क्लियर मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, ग्रीड, जेलसी, और इस तरह के बहुत सारे जो गुण हैं वो हम लोगों ने धीरे धीरे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल देखा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज जो कैंपसेस में मेजर स्टूडेंट्स की डिस्ट्रेस और सोसाइटल प्रॉब्लम है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण 10 साल पहले, 15 साल पहले के जो सुसाइड्स थे आईआईटीज के या हम लोगों के आके, वो सुसाइड्स थे स्टूडेंट के जॉब को लेके या अफेयर्स के ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप को लेके। परंतु आज जो हो रहा है, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स का उसके पेरेंट्स से जो रिलेशनशिप है उसकी जो ब्रेकिंग है उससे ज्यादा अवसाद ग्रहण हो रहा है। और हम लोगों ने तभी निर्णय लिया, क्योंकि मैं छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय पे भी लगातार काम कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा तो सीखे ही ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन उसके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो नए वर्कशॉप्स लेकर आ रहे हैं उसमें उसके पेरेंट्स भी वर्कशॉप कर रहे हैं और स्टूडेंट भी वर्कशॉप कर रहे हैं, क्योंकि घर की वैल्यू तभी है जब सबको एक जैसा, मतलब सबसे एक जैसी अंडरस्टैंडिंग हो, और ना ही हम लोग बच्चों से डरे ना बच्चे हम लोगों से डरे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है कि जो अभी ह्यूमन वैल्यूज पे प्रयोग हो रहे हैं, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है थोड़े थोड़े प्रयोग ह्यूमन वैल्यूज को लेकर करिए, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अंडरस्टैंडिंग से धीमे धीमे, जैसा सर ने बोला है, सहस्रबुद्धे सर ने, कि थोड़े थोड़े कोर्सेस हम सब लोग करें, और बहुत सारे प्रयोगों की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि केवल यही एक मॉडल है जो स्टूडेंट्स को एकदम ह्यूमन वैल्यूज का ये मॉडल, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सही मतलब नैतिक शिक्षा पे भी बहुत सारा कोर्स किया, सब किया। और मुझे वो चुटकुला याद है, मैं और सर गए थे आज के ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब के यहाँ, वो तब शिक्षा मंत्री थे जब हम लोग वैदिक गणित लिखते थे। वो बोलते थे, बागड़िया जी ये बताइए कि उस समय नकल बहुत चलती थी, और नकल का तो आप अभी आज भी माफिया इतना ही बड़ा है जितना बड़ा उस समय था।
तो वो बोलते थे कि सब सब्जेक्ट का पास करने का 40 रुपए ले रहा है और नैतिक शिक्षा को पास करने का 50 रुपए ले रहा है। इसका क्या मतलब, कोई इसके पास सॉल्यूशन है कि नहीं आपके पास? तो ऐसे प्रश्न थे कि भाई इसको पास करने के लिए क्या है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए को करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए एनएसएस को लेकर, हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हम लोगों ने प्रयोग किए। मुझे लगता है कि ह्यूमन वैल्यूज का एक कोर्स है जो काफी स्ट्रक्चर्ड वे में, मैं नहीं कहता कि और लोग नहीं है, अभी हम लोग ने गीता के भी कोर्सेज शुरू किए हैं, वेदांत दर्शन पे भी हम कोर्सेज करते हैं कई जगहों पे। अब चिन्मय मिशन से हम लोग चर्चा किए हैं, वेदांत का भी है, हमारे यहाँ गीता पीठ भी है, मैं बहुत सारे क्योंकि हम मानते हैं कि सब लोगों का अलग अलग मार्ग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में एक कोर्स करने के लिए और स्ट्रक्चर्ड वे में वर्कशॉप्स करने के लिए और स्ट्रक्चर्ड वे में इस कोर्स को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स काफी अच्छा है। सरस बुद्धे सर ने भी कहा, उन्होंने भी देखा है और सब मंच पे भी लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब इस कोर्स के लिए प्रयोग करें और बेटर अंडरस्टैंडिंग के स्टूडेंट्स बनाएं, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज में सच, सर ने सच कहा कि अगर आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में किसी के पास कोई सॉल्यूशन है तो वो भारतीय ज्ञान के पास है, भारतीय परंपरा के पास है। भारत में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस के लिए बहुत सारे प्रयोग किए हैं और उसके मूल में ये है कि पहले व्यक्ति का अपना कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, तब वो दूसरों की मदद कर सके। तो इसके साथ ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। मैं तो आप सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि इस कोर्स के साथ जाएं, इस कोर्स को अपने यहाँ पे प्रयोग करें और इस कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएं। अंत में मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ वहाँ के एल्मुनाई हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर अटल जी रहे और उनकी कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने लिखा है और मेरे से अच्छी पोएम अभी योगेश सर भी सुनाएंगे, उनकी ज़्यादा अच्छी है पोएम की कैपेसिटी और वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम पोएम से सॉल्व करते हैं। तो मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सखा ठहर, मेरे स्वर्णम में गहर गहर, सागर के छल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौराभ में, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for sharing your valuable experiences and learning with us. In a special gesture, we'll be felicitating our dignitaries on the dais with the plant sapling, signifying growth and sustainability. I'll request Chairman AICT, Professor Yogesh Kumar sir, to felicitate Professor Anil D. Sahasbuddhe, Chairman NETF, NAC and NBA. Next. Now I request Chairman sir to felicitate Professor Vinay Pathak, President, Association of Indian Universities. I request Chairman sir to felicitate Professor Rajneesh Arora, Chairman NCCIP AICT. I request Chairman sir to felicitate Shri Rajul Asthana, Vice Chairman NCCIP AICT. I request our previous chairman, Professor Anil D. Sahasbuddhe sir, to felicitate our present chairman, Professor Yogesh Kumar sir. Thank you very much, sir.
Now I request dignitaries on the dais to launch the third edition of Vision Document of Universal Human Values. While this document is being launched, I would like to read the message from Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan Ji, on the document regarding this document. I quote, AICT has produced this document as a broad framework of universal human values for holistic value-based education, which will go in a long way in realizing the vision of NEP 2020. It will help our teachers and faculty across school and higher education to understand the concept in value-based education in detail and learn some strategies to implement the same in the classroom practices. I congratulate AICT and everyone who has been part of developing such an important document in education. I unquote. Thank you very much, sir. We at AICT are blessed to work under the forward-thinking vision and impactful leadership of Professor Yogesh Kumar, Chairman AICT. We request sir to share his guidance with us. Thank you, sir. नमस्ते। देखो, पहली ह्यूमन वैल्यू तो यही है कि नमस्ते का जवाब नमस्ते से देना चाहिए। देना चाहिए? हाँ, तो नमस्ते। हाँ, तो एक तो मैंने सिखा दिया आपको ह्यूमन वैल्यू। मेरे मित्र प्रोफेसर विनय पाठक, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड वाइस चांसलर ऑफ कानपुर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, चेयरमैन नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जिनके बारे में प्रोफेसर विनय पाठक ने कहा कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मैंने कहा फिर तो हमारे अमिताभ बच्चन है। तो उन्होंने कहा नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं है, देवानंद है हमारे। मैं कहा चलिए दोनों ही सही, दोनों ही ब्रांड बड़े नाम हैं, आपको सर ये दोनों नाम शुभ हो। प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा, चेयरमैन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडक्शन प्रोग्राम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेसर राजुल अस्थाना, वाइस चेयरमैन, प्रोफेसर HD चारण, चेयरमैन नेशनल कमेटी फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आदरणीय गणेश बागरिया जी, आदरणीय चोमू शास्त्री जी, प्रोफेसर श्यामारथ, member secretary all India Council for Technical Education, respected vice chancellor from different universities, director of different institutions, officers and officials of all India Council for Technical Education, and my dear outstanding and distinguished faculty members and friends. Good morning and namaste to all of you. Very good morning. जब मैं AICT में आया तो मुझे पता लगा कि एक कॉन्फ्रेंस होनी है वाइस चांसलर्स की, और ये ह्यूमन वैल्यूज पे कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ह्यूमन वैल्यूज को पढ़ाने की आवश्यकता क्या है और क्यों इसको पढ़ाना चाहिए। नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, और पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरे मन में भाव आया और प्रश्न आया। हम सब यहाँ पर टीचर्स हैं और हम ये जानते भी हैं और मानते भी हैं कि शिक्षा का एपिसेंटर होना चाहिए। ये तो शिक्षा के कोर में होना चाहिए। ह्यूमन वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, मानवीय गुणों की बात करते हैं, ये शिक्षा के एपिसेंटर में होना चाहिए। अगर ये शिक्षा के एपिसेंटर में नहीं है तो इसको लाने का प्रयास होना चाहिए था। एक अच्छा प्रयास शुरू किया कुछ शिक्षाविदों ने, मैं उनके प्रयास की सराहना करता हूं, लेकिन बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है कि इसको एपिसेंटर कैसे बनाया जाए शिक्षा का। पाठक साहब ने सही कहा कि हम ऑडिट कोर्स कराते थे, बाद में उसको क्रेडिट किया। वो तो करना ही चाहिए क्योंकि ये को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये कोर करिकुलर एक्टिविटी है। पहले तो इस भाव का निर्माण करने की बहुत आवश्यकता है।
तो एक और मन में बात आता है, जब हम यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करते हैं, यूनिवर्सल, तो इसका मतलब क्या है और इसका भाव क्या है? बहुत सारे शब्द बताए गए, सभी मेरे से पहले वक्ताओं ने कहे हैं और सब सही भी हैं। ये भाव है धर्म का, न्याय का। जब भी हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे तो ये भाव है करुणा का, समझ का, त्याग का, संस्कार का, संस्कृति का। ये भाव है खुशी का, विश्वास का, सत्य का, निष्ठा का, प्रेम का, अपनेपन का, बुद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का। लेकिन एक और भाव है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा, जिस पर कि ह्यूमन वैल्यूज में आज सुबह से बात नहीं हुई, और भारत में और भारत के लोगों के लिए ये बात बहुत आवश्यक है। वो है राष्ट्र प्रेम का भाव। क्योंकि जिस समय ये राष्ट्र प्रेम का भाव इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज में भारत उत्कृष्टता पर रहा है। जब था, उसके बाद 800 साल गुलामी झेली भारत ने। इसीलिए केवल इन गुणों की बात करना पर्याप्त है कि नहीं है, ये प्रश्न छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा भाव है राष्ट्र प्रेम का भाव। और 800 बरस जिस देश ने गुलामी झेली हो, जिस सभ्यता ने गुलामी झेली हो, सब अच्छी चीजें होने के बावजूद झेली हो, तो इस पर भी विचार करने की उतनी ही आवश्यकता है जब हम इसकी समग्र दृष्टि से इसको देखते हैं तो। और ये भाव है मानवता का, ये भाव है इंसानियत का। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि देखकर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, यही बात इंसान को इंसान बनाती है। अगर आपको किसी दूसरे के दर्द में दर्द का एहसास नहीं हो रहा, अगर आपको किसी के दुख में दुख का एहसास नहीं हो रहा है, तो बहुत आवश्यकता है इस पे काम करने की। कोर्स पढ़ाना उसका एक माध्यम है, अकेला माध्यम नहीं है, लेकिन एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है। और यही बात एक हिंदी की कवित्री है तरुणा मिश्रा, वो दूसरे तरीके से इसी बात को कहती हैं, जब वो कहती हैं कि किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। तो शिक्षा का पहला काम है जिंदगी समझने वाले मनों को तैयार करना, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल टीचर्स का है। अगर आपके पास कोई विद्यार्थी आता है और उसकी आंखों की आप बेबसी नहीं समझ पा रहे, उसकी कष्ट और कठिनाई को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको भी उतना ही अपने अंदर काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं अपने जितने हम टीचर्स बैठे हैं कि हम याद रखें तरुणा मिश्रा की पंक्तियां कि किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। और अगर हमको वैसे मन तैयार करने हैं, एरिस्टोटल ने बहुत अच्छा कहा कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये एरिस्टोटल ने कहा, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। साथ रहना कितनी बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं और बहुत बार कोट भी करता हूं कि समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। और अभी हमारी मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर श्यामा रत्न ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने इमीडिएटली नोट करी कि मैं उसको कोट करूंगा। उन्होंने कहा, जबकि कंपटीशन इज द लॉ ऑफ जंगल, कंपटीशन इज द लॉ ऑफ जंगल एंड कोलैबोरेशन इज द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आपका पूरा शिक्षा का तंत्र कंपटीशन से चलता है। हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, कोलैबोरेशन करते नहीं है। सारा तंत्र, सारा सिस्टम, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे टीचर, सारा एग्जाम, सारा इवेल्युएशन, सारा कंपटीशन चलता किस पे है? कंपटीशन, कंपटीशन एंड कंपटीशन। चाहिए क्या? कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो जो चाहिए उस पे काम ही नहीं शिक्षा करती है। तो ये बात तो प्रोफेसर श्यामा ने बहुत अच्छी बात कही है, ये मूल है जो कोर में आनी चाहिए। ये तो जंगल का लॉ पढ़ा रहे हो आप, जंगल का लॉ पढ़ा नहीं रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। सिविलाइजेशन अगर बात है तो और क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? क्योंकि शिक्षा को इसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। मैं बहुत बार एक घटना सुनाता हूं आज भी, क्योंकि आज मुझे लगता है सही समय है उस घटना को दोबारा से बताने का, क्योंकि मेरे जिंदगी में उसने प्रभाव डाला। उस बात ने मुझे ईश्वर की कृपा से कई विश्वविद्यालयों में काम करने का अवसर मिला, एक दो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भी काम करने का अवसर मिला। और वहां के, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, तो किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, किसी को 2 करोड़ का पैकेज मिलता है, किसी को 2.5 करोड़ का पैकेज मिलता है।
तो मेरा मन हुआ कि ये देश के ब्राइट बच्चे हैं, तो एज ए वाइस चांसलर मुझे इनसे बात करनी चाहिए, इनके मनों को समझना चाहिए कि हमारे इतने अच्छे बच्चे कैसे हैं। एक बच्चे से बात हो रही थी, अच्छा पैकेज उसको मिला। उस समय की बात है, कुछ पुरानी बात हो गई, 1.25 करोड़ का पैकेज था, खैर आज भी ज्यादा ही होता है 1.25 करोड़ का। तो जब मैं, और ज्यादातर बच्चों का लगभग मोर और लेस ऐसा सा ही था कुछ का, वो क्या, मैंने उसको पूछा कि बेटा ये 2.25 करोड़ का पैकेज आ गया, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ सर बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्या करोगे? तो उसने कहा कि मौज करेंगे। तो मैंने कहा मौज करने से मतलब क्या? ये तो अच्छी बात है कि हम मौज करेंगे, पर मौज करने से मतलब क्या है? उसने कहा सर मैं ना एक बड़ी सी कार खरीद लूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कार के बाद भी बहुत सारा बच जाएगा। कार तो खरीद लोगे लेकिन बहुत सारा पैसा बच जाएगा, करोगे क्या? कहते सोचता कहते सर मकान खरीद लूं। मैंने कहा इतनी जल्दी मकान खरीद के क्या करोगे? तो मैंने सोचा मैं इसकी मदद करता हूं इस बच्चे की। तो मैंने उसको कहा कि बेटा इसमें से कुछ अपने माँ बाप को दोगे क्या? उसका जवाब कहता है कि सर दे डोंट नीड माई मनी, दे हैव एनफ, दे डोंट नीड माई मनी। मैंने कहा बेटा अभी तो पैसा आया नहीं, माई तो पहले लग गया उसमें, अभी तो आना है। फिर मैंने कहा कि पर माँ बाप को दोगे तो अच्छा लगेगा उनको। कहता सर दे हैव एनफ, यू डोंट नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई हाउस, कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वो ना, मैं उसे पुश कर रहा हूं और वो पुश होने को तैयार नहीं है। मैंने देखो उस बच्चे को जिसका मन ऐसा बन गया, मैं उससे फिर कहता हूं कि इसमें से कुछ हमको दोगे क्या? आप मेरी भी हिम्मत देखो, मैंने उसको कहा कि इसमें से कुछ हमको दोगे क्या? तो बच्चा कहता है कि सर आपका तो कुछ बनता ही नहीं, आपका तो किसी एंगल से और कहीं से कुछ नहीं बनता। तो मैंने कहा हमारा क्यों नहीं बनता? कहता है सर कैसे बनता है बताओ। मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोचिंग गया, बहुत मेहनत करी। जब बच्चे सिनेमा देखते थे मैंने सिनेमा नहीं देखा, जब बच्चे दूसरे कुछ करते थे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जिंदगी में केवल पढ़ाई करी, कोचिंग करी, और मैंने जेई का एग्जाम पास किया, अच्छे नंबर लाया। इसमें आपका क्या? मैं कहा इसमें तो हमारा कुछ नहीं। कहते मैं यहां आया, पढ़ाई करी, एग्जाम दिए, जब बच्चे क्रिकेट खेलते थे कहीं और कुछ जाते थे मैं नहीं जाता था, और कंपनी आई, कंपटीशन में बैठा, अच्छे नंबर उसमें लाया, कंपनी ने मुझे सेलेक्ट किया, तो इसमें आपका क्या? तो मैं सोचने लगा कि ये देश का सबसे अच्छा बच्चा है, और उसको इसका एहसास ही नहीं कि जब वो तैयारी कर रहा होगा तो माँ रात को खाना बना के भी लाई होगी, पिता ने भी कुछ किया होगा, और उसको उस चीज के भाव का निर्माण ही उसके अंदर नहीं हुआ। उसको लगता है कि आई एम द सोल प्रोपराइटर ऑफ माई सक्सेस। तो मुझे हरिओम पंवार जी की कुछ पंक्तियां ध्यान आई, मैंने कि मैं कोट करता हूं कि अरे हम कर्जा खाए बैठे इन अपनों की कुर्बानी का, हम कर्जा खाए बैठे इन अपनों की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। जिसको, जो बच्चा माँ बाप को देने को तैयार नहीं है, वो देश को क्या देगा, इंस्टीट्यूशंस को क्या देगा? पर क्या ये उसका कसूर है? आपने कहा पढ़ो तो वो पढ़ा, आपने कहा कि एग्जाम दो तो दो, उसने दिया, ट्यूटोरियल करो तो करा, असाइनमेंट दो तो किया। माँ ने भी बचपन में उसको यही कहा ना कि बेटा असाइनमेंट है, किसी को दिखाइयो मत, तेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। उसने शेयर नहीं किया असाइनमेंट किसी से, ऐसे संभाल के रख लिया असाइनमेंट। तो जैसा हमने किया, कसूर बच्चे को क्यों देंगे? हम जिम्मेदार हैं, शिक्षा जिम्मेदार है, हम शिक्षा से जुड़े लोग जिम्मेदार हैं कि हमने उस विषय पे काम ही कहां किया। हमको लगा कि सब ठीक है, तो अगर इस देश का सबसे ब्राइट माइंड ऐसा सोचता है, कल को जब ये बड़े पदों पे जाएगा, और लेगा वो बड़े पद क्योंकि अच्छा बच्चा है, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, हमारे सारे टेस्ट यही तो चेक करते हैं, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, वोकैबुलरी है, इतिहास का भी ज्ञान है, एग्जाम दे सकता है, अच्छे नंबर ले सकता है। जब वो बड़े पदों पे बैठेगा, तो मैं कौर बेचन साहब की कुछ पंक्तियां कोट करता हूं, वो जो कहते हैं कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा अड़े रहना, मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाइयों से वाकिफ हूं,
मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाइयों से वाकिफ हूं। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। हम बहुत बार लोगों से मिलते हैं और अगर आपको वो अपनेपन का एहसास नहीं आता, मिलकर आप निकलते हैं तो छोटापन लगता है। आप बाहर आते हैं तो आपके मन में क्या भाव आता है कि कुर्सी तो छोटी थी, सॉरी, कुर्सी तो बड़ी थी पर आदमी छोटा बैठा हुआ था। ये मन में भाव बहुत बार आता है, हम सबकी जिंदगी में आता होगा कि कुर्सी तो बड़ी थी पर आदमी छोटा बैठा हुआ था। कौन फेल हुआ? शिक्षा फेल हुई। क्योंकि शिक्षा ने पहली क्लास से लेकर और पीएचडी तक इस भाव पर काम किया ही नहीं कि एक व्यक्ति जब आपसे मिलने आता है तो उसको छोटेपन का एहसास नहीं होना चाहिए। आप करा देते हैं और आप अननोइंगली करा रहे हैं। मैं उन बच्चों का कसूर बिल्कुल नहीं मानता हूं। जैसे आपने सिस्टम बनाए उसके वो बेस्ट बच्चे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पर उस भाव पे मैं एक और घटना सुनाता हूं कि इस कंपटीशन से जो श्यामा जी ने बात कही कि जो मार्क्स बेस्ड सिस्टम का नुकसान क्या हुआ। यहाँ पे प्रोफेसर वैशाली बैठी है, मैं उन्हीं की यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी से आता हूं। मैं जब क्लास में पढ़ाता था, आप भी पढ़ाते होंगे, तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, नहीं सॉरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप असाइनमेंट दो या आपने पेपर चेक करके उनको दिया तो वो आपके पास भाग कर आ जाते हैं कि सर इसमें आपने नंबर कम दिए, इस सवाल में नंबर कम दिए, 4 ज्यादा चाहिए, 5 ज्यादा चाहिए, 2 नंबर एक्स्ट्रा लगा दो सर। आएंगे, उनका स्वभाव है। मैं क्या करता हूं, 4-5 बच्चों को समझ लेता हूं कि ये 4-5 बच्चे तो आएंगे ही हर बार। तो मैंने क्या किया, कई बार उनके मार्क्स में जैसे 20 आ रहे थे तो 25 कर दिए, 26 आ रहे थे तो 28 कर दिए। अब मैं देखता हूं कि रिएक्शन क्या है बच्चे का। जब मैं कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, मैं ध्यान से देखता हूं तो बच्चा अपनी कॉपी ऐसे चेक करता है, देखता है और वो कॉपी को बंद करके रखता है। दोस्त बोलता होगा दिखाने को, तो दिखाता नहीं उसको, वो दिखाता नहीं है उसको कॉपी। यानी 3 और 4 मार्क्स ने पूरा ईमान खरीद लिया उसका, पूरा ईमान खरीद लिया उसका, पूरी ह्यूमन वैल्यूज खरीद ली उसकी। आप सिखाते रहिए। आज तक मेरे पास कोई बच्चा आया नहीं, पर वो क्यों नहीं आया ये प्रश्न तो आप सोचो ना। मेरे पास बच्चा क्यों नहीं आया? उसको पता था मैं मार्क्स कम कर दूंगा, इसीलिए नहीं आया ना। उसको पता था मैं मार्क्स कम कर दूंगा। अगर उसको ये भरोसा होता कि सर के पास जाऊंगा, सर शाबाशी देंगे, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, सच्चाई का काम किया, निष्ठा का काम किया, चल तेरे को 10 नंबर और देता हूं, सारे बच्चे आते। आपने इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनाया, ना टीचर्स की ट्रेनिंग है ना किसी और की ट्रेनिंग है। सच कह रहा हूं ना। अगर आप 5 नंबर एक्स्ट्रा दे देते तो क्या हो जाता? ये धरती गिरती, आसमान गिरता, कुछ नहीं होता। पर उसके मन में बात बैठ जाती कि मैं सच्चाई के साथ रहूंगा और सर मेरे को शाबाशी देंगे, सारे बच्चे आपके पास आते। अगर हम ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाने की आवश्यकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है और उसका तरीका क्या है। अगर एक बच्चे की असाइनमेंट दूसरे से कॉपी कर लेता है, आप उसको भी डांटते हो, दोनों के नंबर कम कर देते हो। आप तय कर देते हो उस दिन कि बच्चा किसी से कुछ शेयर नहीं करेगा, उसको सिखाएगा नहीं, और आप बंधुत्व की बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं। कहां कोलैबोरेशन? अगर 2 बच्चों की सेम असाइनमेंट पकड़ी गई, दोनों को बुलाकर समझाएंगे और जिसने उसको सिखाया या उसकी कॉपी कराई है, अब आपको लगेगा मैं कॉपी करने को बढ़ावा दे रहा हूं। मैं कॉपी करने को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहा। मैं बात क्या कह रहा हूं कि आपने उसके अच्छे वैल्यू सिस्टम को सराहा कब? पूरी शिक्षा में। जब कंपटीशन बेस्ड, मार्क्स बेस्ड पूरा सिस्टम हमने बना दिया, तो केवल इंडक्शन प्रोग्राम या कोर्स करना पर्याप्त नहीं है, हर इंस्ट्रूमेंट पे काम करने की जरूरत है अगर इसके असर को बढ़ाना है तो। क्योंकि अच्छाई के पेड़ लगाओगे तो ही तो जब वो बड़े बनेंगे तो उसमें फल आएंगे। क्योंकि जिस चीज में इन्वेस्ट करोगे ना, मिलेगा तो वही। अभी बात हुई कि माइनर डिग्री ह्यूमन रिसोर्स में, इसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में कराएंगे, बिल्कुल करानी चाहिए। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने चाहिए। और एआईसीटी के माध्यम से बहुत अच्छा भी हुआ कि 4-5 हजार इंस्टीट्यूशन से इसको काम भी कर रहे हैं। 1 लाख ट्रेनिंग। एक बार बार बात कही गई कि हमारे टीचर पैसे नहीं लेते, मेरा उसमें व्यू थोड़ा अलग है। देखिए, पैसे में बड़ी ताकत होती है। बिना पैसे के तो फिर सस्ता सामान ही मिलता है, मैं ऐसा मानता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को। पैसा गलत तरीके से कमाया गलत है,
अच्छे तरीके से पैसा कमाया गलत कैसे हो सकता है? वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो तो अच्छे व्यक्ति के हाथ में आया पैसा उस अच्छाई को और बढ़ाएगा, उसको आगे बढ़ाएगा। वो उसकी सच्चाई का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, मेहनत का पैसा है, और वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए मैं पैसे को बहुत अच्छा मानता हूं अगर वो अच्छे सोर्स से अच्छे तरीके से आता है। खैर मैं थोड़ा, आप लोग सोचिएगा, मैं तो वैसे साधारण आदमी हूं तो साधारण तरीके से अपनी बात कह रहा हूं। अभी हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद में वैल्यू एडिशन कोर्सेज पे काम किया कि ये ह्यूमन वैल्यूज के, और आज अच्छा है कि प्रोफेसर निरंजन भी यहाँ हैं जो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने कोई चीज कंपलसरी नहीं करी कि कोई ये कह दे कि जी ये आपको पढ़ना ही है, लेकिन हमने 10-20 कोर्सेज बनाए हैं और हर स्टूडेंट को 2 क्रेडिट लेना है हर सेमेस्टर के अंदर, ताकि कंटिन्यूस चले वो अपनी उसमें। मैं आपको थोड़ा डेटा शेयर करूंगा सिर्फ कि कल्चर एंड कम्युनिकेशन पे 40,423 बच्चों ने उसको लिया। एक कोर्स है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, 59,559 लोगों ने लिया। ये 3 साल का डेटा है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को 42,000 के करीब ने लिया। एथिक्स एंड कल्चर को 36,625 ने लिया। भारतीय भक्ति परंपरा और जीवन मूल्य को करीब करीब 7,000-8,000 लोगों ने लिया। धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं बच्चे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज को ले भी रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ रहा है। पर ये ना, सच बता रहा हूं, ये बहुत आवश्यक है, ये कोर है, पर इसके साथ इसके इंस्ट्रूमेंट चाहिए हर कोर्स में इंप्लीमेंट करने के लिए, जिससे उस भाव जो वो सीखता है क्लास में वो प्रैक्टिस में भी तो देखे और प्रैक्टिस करे। कोलैबोरेशन को बढ़ाना है तो ग्रुप लर्निंग को जब आप बढ़ाएंगे तो उसके मार्क्स दीजिए बच्चों को। टीचर्स को लगना चाहिए, एक बच्चा जो बार बार आता है, क्लास में भी सपोर्ट करता है, अटेंडेंस भी देता है, वो डिसिप्लिन बच्चा है, तो उसको उसका कुछ फायदा तो दीजिए। मार्क्स में भी हो सकता है, प्रशंसा से भी हो सकता है, व्यवहार से भी हो सकता है, क्योंकि ए सोसाइटी दैट fosters human values and ethics is a society that thrives in innovation, peace and prosperity. अब ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो अच्छी बात है। मैंने अभी शुरू में क्या बात कही थी कि भारत में 800 साल की गुलामी देखिए, उससे पहले ह्यूमन वैल्यूज बहुत हाई थी जिस समय गुलामी शुरू हुई। वीरता में अच्छे, सब में अच्छे थे, पर चले गए क्योंकि हम शांति काल के नियमों को युद्ध काल में लगाने लग गए। गलती क्या हुई? शांति काल है, आज शांति है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, तो उसके जो नियम है वो युद्ध काल में थोड़ी लग जाएंगे। दुश्मन को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, एक बार भी नहीं छोड़ा जा सकता। जो वो देश के बॉर्डर को क्रॉस करेगा उसको एक बार भी नहीं छोड़ा, उसकी कोई ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। पर भारत ने बहुत बड़ी गलती करी है अपने कालखंड में 800 वर्ष में, कि जो शांति काल में ह्यूमन वैल्यू सिस्टम सिखाया गया उसने युद्ध काल में भी वही लगाया। देश पर आक्रमण हो रहा है और 4 राजा सहायता को दूसरे राजा के नहीं आ रहे हैं। आप में देशभक्ति का भाव ही नहीं है, उस भाव को निर्माण ही नहीं किया आपने। तो उस समय का जो कष्ट था वो आज भी है। इसी कारण से थोड़ा मॉडिफाई करने की आवश्यकता है कि राष्ट्र, ये किस राष्ट्र प्रेम की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कुछ भी। ह्यूमन वैल्यूज में इसको समावेश करने की आवश्यकता है। करुणा का भाव अच्छा है, शत्रु के साथ नहीं है। राजा का व्यवहार प्रजा के साथ जो होना चाहिए वो शत्रु के साथ नहीं हो सकता। राजा का धर्म प्रजा के साथ अलग है, शत्रु के साथ अलग है। ये जो घालमेल भारत ने और भारत के समाज ने किया है, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। आप तो सब ह्यूमन वैल्यूज के ही हैं, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुश हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे। कोई 10-20 ने उठाया, दूसरे एक दूसरे को देख के उठा रहे हो, ये क्या बात है? ऐसा नहीं करो ना, है? क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सबको गिला है कि हमको कम मिला है, पर ये तो सोचो आप जितना कितनों को मिला है। तो खुश रहने के तो बहुत कारण हो सकते हैं, आप कैसे ढूंढना चाहें। इसी कारण से द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन द लीडरशिप ऑफ द वाइस चांसलर्स एंड एकेडमिक हेड्स। आप समझेंगे तो बाकी समझेंगे।
आप कन्विंस होंगे तो बाकी सब कन्विंस होंगे। मैं एक और घटना सुना के बात खत्म करूंगा। अभी प्रोफेसर प्रतीक बैठे हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, मैं इससे पहले वाइस चांसलर था वहां पे। तो एक दिन एक स्टूडेंट आया मेरे पास, डॉक्टर लेकर आए थे, प्रोफेसर डॉक्टर रवि बंसल डॉक्टर हैं, वो मुझे लेकर आए और मैंने देखा बच्चा बदहवास, आपके ह्यूमन वैल्यू से जुड़ी हुई घटना है, बदहवास बच्चा परेशान। तो मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता है सर मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा मैं इसीलिए आपके पास लेकर आया कि ये कह रहा है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों सुसाइड करना चाहते हो? मुझे लगा फेल हो गया होगा। मैंने कहा बेटा अगली बार अपीयर हो जाना, फेल होने में तो कोई खास बात नहीं है, जैसे एक सहज। मैंने कहा, उसने कहा सर नहीं। मैंने कहा कितने मार्क्स आए? कहते मार्क्स तो मेरे सर ठीक हैं, इतने अच्छे नहीं है पर ठीक है, 86% आए हैं या 85% आए हैं। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है, पापा पैसे भेज रहे हैं घर से? कहता हाँ पापा पैसे भी भेज रहे हैं। और क्या कष्ट है तेरे को? पैसे आ रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, और क्या कष्ट है जो मरने की बात कर रहे हो? कहता नहीं सर, गॉड इज वेरी अनकाइंड टू मी, गॉड इज वेरी अनकाइंड टू मी। मैंने कहा क्यों? तो वो बात क्या कहता है? कहता है सर मेरे रूम पार्टनर है, उसकी आय 92%, मेरे आय 86%, तो मुझे बड़ी जेलसी होती है। मैं सोचता हूं उसको ना पीट दूं पकड़ के, मैं उसको पीटना चाहता हूं, पर मैं पीट सकता नहीं। देखो, शरीर मन बुद्धि आत्मा है, तो मन तो बहुत कुछ करता है करने को। 3 इडियट फिल्म का सारा मैसेज गलत है। ये सोसाइटी को जो सिखाया जाता है ना, मन जो कहता है वो करो, किसी की मत सुनो, मन की सुनो, ये गलत है। बुद्धि रोकती है, मन तो करता है किसी को पीट दो, पीटते थोड़ी है अपन, बुद्धि रोकती है। और जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है वो पीट भी देता है किसी को। तो बुद्धि और मन का सामंजस्य बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन वैल्यूज करता है, मन और बुद्धि का सामंजस्य करता है, सही को सही और गलत को गलत, यही तो धर्म है। तो खैर मैं उस बात पे आ रहा हूं। तो मैंने उसको कहा कि तो रूम चेंज कर देते हैं तुम्हारा, और इसका क्या है सिंपल सॉल्यूशन? कहता नहीं सर वो रूम नहीं चेंज करना, वो अच्छा बच्चा है, मैं रहना तो उसी के साथ चाहता हूं, पर सर मुझसे ना जेलसी कंट्रोल नहीं हो रही। सर मैं जानता नहीं जेलसी कैसे कंट्रोल करूं, आप मुझे सिखाओ कि जेलसी कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं सोचने लगा मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, और उसको क्या बताऊं, ना मुझे किसी ने सिखाया, और वाइस चांसलर के साथ तो बड़ी दिक्कत है। उसने कहा नहीं नहीं सर जेलसी कैसे कंट्रोल करूं। मैंने कहा भैया ये तो मैं डॉक्टर को कहा यार कोई मेडिसिन आती है जेलसी कंट्रोल करने की? उसने कहा सर मेडिसिन नहीं आती, हम फील गुड हार्मोन्स दे देते हैं इसको। तो खैर हमने तय किया कि हमारे ऑफिस में ही ड्यूटी लगी कि वो बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, नहीं परेशान है, सुसाइड करने की सोचता है, तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है, शिक्षा के लिए शर्म की बात है, पर असल बात है हम पे पहले आ गया वो। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा अच्छा बता तू दौड़ा कितने दिन से नहीं है? कहता जी 8वीं के बाद नहीं दौड़ा। मैंने कहा 100 मीटर दौड़ सकता है? कहता नहीं। तो हमने एक कोच को बुलाया कि इसको ना रोज आप 400 मीटर दौड़ाओगे, और उसके बाद हमारे ऑफिस में आकर वो रोज दवाई खाएगा, जो भी डॉक्टर ने दवाई प्रेस्क्राइब करी दवाई खाएगा। आप असर देखिए दो ही चीजों का, कि रोज उसको 400 मीटर एक कोच की जिम्मेदारी लगी, और एक उसको दवाई दी गई, क्योंकि दवाई सामने खा रहे हैं तो हमें पता है कि जा रही है दवाई। आज वो बच्चा बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, उसका जीवन भी सुधरा, और लाख मैं समझता हूं बहुत अच्छा उसके बाद पैकेज भी होगा। पर यदि हम चूक जाएंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रयास नहीं करेंगे, तो आज हर घर में समस्या है, आज हर घर में समस्या है। इंटरनेट और एयर कंडीशनिंग ने कमरे बंद कर दिए सबके घरों में बच्चों के, इंटरनेट के माध्यम से अंदर आ गए। माँ बाप भी खटखटा कर अंदर जा रहे हैं कमरों में, डर रहे हैं। सही बात कही थी कि डरते हैं माँ बाप, पर इससे बाहर निकालने का रास्ता तो यही है जो ह्यूमन वैल्यूज के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो यूनिवर्सिटीज मस्ट बिकम इकोसिस्टम वेयर वैल्यूज आर नॉट जस्ट टॉट बट दे आर लिव्ड एंड प्रैक्टिस्ड। हाउ के इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने हैं, हाउ टू डू इट। वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर डाइवर्सिटी इज रिस्पेक्टेड, discussions are encouraged, ethical conduct is the norm, but not at the cost of राष्ट्र प्रेम। ये भारत के लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। खतरे देश पे अभी भी उतने ही हैं जितने की 1100 और 1200 सदी में थे। ये ध्यान हमको रखना है, नई पीढ़ी को रखना है। भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ेगा अगर, तो खतरे और बढ़ेंगे, क्योंकि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। आज के जो चैलेंजेस हैं 47 के चैलेंजेस वो नहीं होंगे, बहुत खतरे के साथ चैलेंजेस आएंगे। इसीलिए आज हमको बहुत बड़ा काम मिला है कि ये जो पीढ़ी है जो विश्वविद्यालयों में है, इसने आगे देश को नेतृत्व देना है। अगर इसके मनों को हम अच्छा कर पाए तो समझिए कि हमारा जीवन भी सार्थक होगा। और मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी ऑल विल टेक द all necessary steps in our institutions
and our students will become role model for humanity, peace, prosperity without compromising the interest of our country. मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, आई एम सो सॉरी, पर आपसे अच्छा लगा कि इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ मिल रहा हूँ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर हम सबको शक्ति दे कि अच्छा करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। Thank you very much, sir, for this inspiring and insightful address. Now this is the time for tea break, but before tea break, we'll be having a group photograph. For the group photograph, I'll request dignitaries to please take seats on the front seats so that we can take photograph from. I request photographers, sir, to come here. And participants who are sitting in the back rows are requested to please come forward and take front seats so that front seats are also full. It will look better during the photograph. After this photograph, we'll have a tea break. I will request everyone to have tea within 20 minutes and then assemble here again. Tea will be served outside the auditorium. Thank you. If any of the delegate has not done registration yet, you may do the registration during the tea break. Thank you. Everyone who is standing, please sit down. Everyone, please take your seats. AICT staff, AICT officials, please take seat. No one should be standing right now, otherwise this photograph will not come proper. Please take seat as soon as possible. Thank you, sir.